Hello my dear students, welcome to the class. So this is me, Dr. Sahil Lone. So today we are going to discuss molecularity of the reaction. What is molecularity? Another very important topic in the chemical kinetics. So this is your lecture number 10. The lecture number 9 has already been uploaded on the website. We have done so many numericals in that lecture. I think they will be very useful for the students. And the numericals were taken from the last year JEE exam, NEET examination, and some unsolved questions, NCERT textbook questions. That was part 1. We will be doing some maybe more sessions on that, so that the things will start becoming clear now. Now today we are going to discuss another important topic in the chemical kinetics, that's molecularity. इससे पहले हमने समझा था order of the reaction क्या होता है. अब बात होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की. मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, वो किस चीज़ के लिए डिफाइन करते हैं, किस रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं और किसके लिए डिफाइन नहीं करते. तो चलिए आज बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी इससे पहले हमने समझा था ऑर्डर, अब समझना है मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी एज द नेम सजेस्ट, इट्स मॉलिक्यूलरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स or they can be atoms of reactants that take part in the chemical reaction. The molecularity is defined as the number of molecules or atoms of reactants that take part in the chemical reaction, जो आपके chemical reaction में हिस्सा लेते हैं. अब बच्चों, जब भी molecules या atoms जो है जब reaction में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पे हम जो है एक collision theory आती है. collision theory आपने पढ़ा होगा. That means the molecules must collide. Molecules must collide, and they must collide effectively. Effectively collide. जब वो effectively collide करेंगे तो आपका क्या बनेगा? Product बनेगा. You will get the product in that. So it's collision theory that molecules must collide and they must collide effectively. Then only the products will be formed. So that's your reactants basically will collide and they must collide effectively so that the products will be formed. So the number of molecules that collide simultaneously and effectively, the number of molecules that collide simultaneously and effectively to form the product, to give product in an elementary reaction. आपकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड करते हैं, एक तो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और उनका कोलिजन जो इफेक्टिव कोलिजन होता है. देखो कोलिजन तो बहुत सारे होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन हो जाएगा. लेकिन वो कोलिजन एक तो साइमल्टेनियस होना चाहिए, साथ साथ कोलाइड करेंगे, और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, उनमें एक इफेक्ट हो जाए, जो उनकी एनर्जीज है वो एनर्जी लेवल्स में मैच हो जाएंगी, ताकि उनमें जो है एक रिएक्शन हो जाएगी, एक नया प्रोडक्ट बनेगा. तो कोलिजन्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन इफेक्टिव कोलिजन्स बहुत कम होते हैं. वो इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं, दोज इफेक्टिव कोलिजन्स दे ओनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो दैट इज व्हाई दिस थिंग इज एम्फसाइज्ड हियर, that is they should be simultaneous and they should be effective, and that will give the product in an elementary reaction. So molecularity जो term है, it is only defined for the elementary reactions. Molecularity is only defined for elementary reactions.
जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूलरिटी हम उन्हीं के लिए सिर्फ डिफाइन करते हैं. मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस. नाउ व्हाट आर दिस एलिमेंट्री रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? They are basically the single step reactions. Elementary reactions are your single step reaction. So molecularity is only defined for the elementary reactions. Now these elementary reactions are single step. They are the reactions which take place in single step. ये ऐसी reactions होती है जो single step reactions होती है. Elementary reactions कहते हैं जब single step में कोई reaction होती है वो एक ही step में होती है, तो उसको हम कहते हैं elementary reaction और single step reaction. So molecularity is not defined for multi-step, we call it as complex reaction. So molecularity is only defined for the elementary reactions which are single step reactions. उनके लिए हम molecularity define करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ molecules हैं या atoms या reactants के जो उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उसको हम molecularity कहते हैं उस रिएक्शन की. लेकिन ये खाली और खाली हम डिफाइन करते हैं. molecularity is only and only defined for the elementary reactions, that is the single step reactions, those reactions which take place just in a single step. वो complex reactions नहीं होती हैं. So complex reactions जो होती है, जो multi step reactions होती है, उनके लिए हम molecularity को डिफाइन नहीं करते हैं. That's why I am saying molecularity is not defined for the multi step or the complex reactions. जो reactions बहुत सारे steps में होती हैं, उसके लिए molecularity डिफाइन नहीं की जाती है. So molecularity is only and only defined for the single step of the elementary reactions. So if there is some reaction that is an elementary single step reaction, so you can say that this reaction we define molecularity, but not for the other one, that is the multi-step or the complex reactions. Now we come to elementary. अब हम बात करेंगे elementary जो बेसिकली होती है single step reaction, उसकी हम बात करेंगे. वो रिएक्शन जो खाली एक स्टेप में होती है. इट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप. ये एक ही स्टेप में होती है. पूरी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है. लेट्स सपोज हम लेते हैं A plus B, इट गिव्स यू C. नाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल स्टेप. ये खाली एक स्टेप में. जब हम इसका रेट लिखते हैं R इज इक्वल टू, हम लिखते हैं K A रेज़्ड पावर 1 B रेज़्ड पावर 1. और ये जो रेट है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. जो रेट का जो इक्वेशन है ये हमें एक्सपेरिमेंट से, ये जब मैंने आपको आर्डर हमने पढ़ा था उस वक्त भी मैंने बोला था, आर्डर जब हमने स्टडी किया था, कि जो रेट लॉ इक्वेशन है या जो रेट एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन का, उसका जो उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो उसमें ऑर्डर की जो इसकी जो टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उन पे जो पावर्स होती है जिसको हम ऑर्डर कहते हैं बेसिकली, वो खाली आपको कहाँ से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करना आपको लैब के अंदर, वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसकी रेट एक्सप्रेशन कैसी बनेगी, उसके जो ऑर्डर्स हैं डिफरेंट रिएक्टेंट्स के वो क्या होंगे उसके. तो यहाँ पे इसका जो है, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है ऐसे, तो इसका जो ऑर्डर है, नाउ इट्स ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 + 1 दैट्स 2. और इसकी अगर आप मॉलिक्यूलरिटी की बात करोगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी? 2, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है, ये एक है और ये दूसरा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. सो इट्स ऑर्डर. सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस वी कैन से दैट ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी. एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होते हैं, दैट सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शंस. तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई. तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं ओनली एंड ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस.
जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं, उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। लेकिन जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं या जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं विच आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस, उनके लिए कोई मॉलिक्यूलरिटी टर्म डिफाइन नहीं है। सो दिस शुड नाउ बी क्लियर वंस एंड फॉर ऑल टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद ये आता है कि जो रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, उनका जो ऑर्डर है और उनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बराबर है। लेकिन हम अभी आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, लेकिन उनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल नहीं होता है। जबकि जनरली ये देखा गया है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस का बराबर होता है। अगर उसका ऑर्डर 2 है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 ही होती है, या अगर कभी ऑर्डर 3 है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी भी 3 होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन था, अब हम इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है। लेट्स सपोज एक रिएक्शन है हमारे पास NH4NO2, और ये जब यहाँ से जब ये ब्रेक होता है तो इस रिएक्शन से हमें निकलता है N2 + 2 H2O। और जब हम इसका रेट लिखते हैं, व्हेन वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जो रेट आता है वो आता है K NH4NO2 raised power 1। दैट मीन्स इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। सो वी कैन से दैट ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों बराबर है इस केस में। और अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है इसका 2 HI, इट गिव्स यू H2 + I2। तो इसका जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K HI raised power 2। और इस दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल टू एंड मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि ये सारी जो रिएक्शंस हैं, जैसे ये रिएक्शन है अगर हम इसकी बात करेंगे, और ये थर्ड केस है, ये सारी रिएक्शंस दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, दैट्स एलिमेंट्री रिएक्शंस, एंड दिस इज आल्सो एन एलिमेंट्री रिएक्शन और ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास एक और केस है। ये हम खाली सिंगल स्टेप रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। Now these are single step reactions. Now let's suppose, now fourth example, let's suppose we have 2NO plus O2. It's giving you 2NO2. It is also a single step reaction or element reaction. If we अब हम इसका रेट ला लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K NO raised power 2 O2 raised power 1। तो इसका जो ऑर्डर है बेसिकली, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 3, दैट इज termolecular. We can say termolecular or trimolecular. अगर एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो बाईमॉलिक्यूलर है, अगर 3 ले रहे हैं तो टर्मोलिक्यूलर और ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये भी आपकी सिंगल स्टेप या जिसको आप कहते हो एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ तक बात ठीक है। तो अगर आप इन सारी जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है, हमने आपको बताया जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक चीज़ बताया था आपको, गोल्डबर्ग एंड वेगी लॉ। गोल्डबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड वेगी। इन्होंने एक दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, इन्होंने एक दिया था उस वक्त लॉ ऑफ मास एक्शन।
उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई रिएक्शन है A+2B, इट गिव्स सम प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने ये कहा था कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन R है, R को हम लिख सकते हैं कि A रेज्ड पावर, जो इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको रेज्ड पावर कर दो, यहाँ B इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको रेज्ड पावर कर दो। तो लेकिन उस वक्त हमने ये कहा था कि ये जो इनकी एक्सप्रेशन है, जो इनका लॉ है, ये बहुत सारे रिएक्शंस पे अप्लाई तो हो रहा था, बहुत कुछ केसेस में ये सही जो है बैठ रहा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे रिएक्शंस में इट वाज फेलिंग एक्चुअली, ऐसा नहीं हो रहा था। जब फिर प्रैक्टिकली देखा गया लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके, तो उनकी रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट आ रही थी, ना कि उनकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो कोफिशिएंट्स है उसको पावर में लेके। लेकिन अगर आप एलिमेंट रिएक्शंस की बात करोगे, सिंगल स्टेप रिएक्शंस की, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो एटलीस्ट ये सही बैठ रहा है। जो आपकी गुलबर्ग एंड वेगी लॉ है वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे रेट इज इक्वल के एन ओ रेज्ड पावर 2, यहाँ इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और 2 रेज्ड पावर 1 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे तो सही बैठ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है ये एक्चुअली लैब से डिटरमाइन किया गया है। इट हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये ऐसे ही नहीं बताया हमने, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तभी हम इसका ये रेट लॉ लिख रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस और गुलबर्ग जो एलिमेंट रिएक्शन, उनमें गुलबर्ग एंड वेगी जो लॉ है वो एटलीस्ट जो है फिट बैठ रहा है, वो वहाँ पे सही जो है साबित हो रहा है, इट इज़ प्रूव करेक्ट इन दोज केसेस। तो ये आपकी जो है सिंगल स्टेप रिएक्शंस थी, या जो भी आपकी जो है एलिमेंट रिएक्शंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सिंगल स्टेप रिएक्शंस your order is equal to molecularity। सिंगल स्टेप रिएक्शंस में जो होता है आपका जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। तो ये आपकी सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शंस है। बच्चों जो मॉलिक्यूलरिटी है, हमने अभी तक ये बात की कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी होती है कि आपके जो कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उससे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। बेसिकली उनमें कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन्स इफेक्टिव होनी चाहिए, साइमल्टेनियस कोलिजन्स होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या हो सकती है, जो प्रैक्टिकली क्या हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी। आपकी मॉलिक्यूलरिटी लेट्स सपोज m इक्वल 1 होगी, तो आपका यूनिमॉलिक्यूलर होगा, इसको हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। इफ m इज इक्वल 2 वी कैन से इट इज बाइमॉलिक्यूलर। अगर m आपका 3 है वी कैन से इट इज टर्मॉलिक्यूलर। और अगर m कभी कभी 4 है, जो बहुत 3 भी रेयर है, अगर 4 भी है तो आप उसको कह सकते हो टेट्रा मॉलिक्यूलर। तो बच्चों आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी जो एक मॉलिक्यूल है, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज A है और यहाँ इसी का दूसरा A है, तो इनमें जो कोलिजन होता है, इनमें ऐसे भी कोलिजन हो सकता है, देयर कैन बी हेड ऑन कोलिजन, एक हेड ऑन कोलिजन हो सकता है इन दो मॉलिक्यूल्स में। तो इट इज़ मोर लाइकली, ये आपका मोर लाइकली है, मतलब इसके चांसेस ज़्यादा है, लाइकलीहुड इज मोर। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इफ आई टेक 2 मॉलिक्यूल्स, ये एक है और ये दूसरा है, these are 2 molecules, let's suppose this A, this is B। तो दो मॉलिक्यूल्स में क्या है कि इनमें भी कोलिजन हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ से एक और A आ जाएगा, ये आपका B आ जाएगा, तो इनमें भी आपस में ऐसे कोलिजन हो सकता है, इसमें ऐसे हो सकता है, तो इनके कोलिजन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर यही 3 मॉलिक्यूल्स है, इफ m इज इक्वल टू 3, अब 3 मॉलिक्यूल्स है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 3 मॉलिक्यूल्स अगर ये आपका जो है यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन जो है, यूनिमॉलिक्यूलर चांसेस हो सकते हैं, बहुत जो है वी कैन से मोर लाइकली है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं आपस में तो उनमें भी चांसेस हैं, लेकिन अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो चांसेस हैं बहुत कम है, इट इज़ वेरी लेस, वी कैन से वेरी लेस चांसेस ऑफ collision, we can say it is likely।
और एक अगर होगा तो एक में तो ज़्यादा चांसेस है। तो आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, m शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 3। m की जो वैल्यू है वो हमेशा 3 या 3 से कम होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। उसका रीज़न ये है कि फिर उसमें चांसेस नहीं है, आपस में कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 3। 3 या 3 से कम होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू। यानी एक रिएक्शन में अगर आपस में जो है 2 मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले सकते हैं, एक मॉलिक्यूल 2-3 मॉलिक्यूल तक हिस्सा ले सकते हैं, नहीं कि 4 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, तो उसमें फिर कोलिजन्स, जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, साइमल्टेनियस कोलिजन्स होते हैं, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि आपके 3 मॉलिक्यूल्स का जो उनका आपस में कोलिजन होता है, साइमल्टेनियस इफेक्टिव कोलिजन होता है, इट इज़ वेरी लेस। जो है उसकी जो चांसेस हैं उसकी बहुत ही कम चांसेस है कि उनमें आपस में कोलिजन हो सकते हैं। अगर कोलिजन्स हो भी जाते हैं लेकिन वो कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे जिससे कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसकी, जो हम अभी सिंगल स्टेप रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जो हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ, हमारा एक है CH3COOH प्लस, इसके साथ हम मिलाते हैं, इसके साथ हम CH3CO C2H5, ये हमारा है C2H5 प्लस, इसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं हमारा यहाँ पे मिलता है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये आपका ईस्टर है, इथाइल ईस्टर। आप तो इसका जब हम रेट लिखते हैं, जब इसके रेट लॉ लिखते हैं, तो इसका रेट लॉ ऐसे आना चाहिए CH3COO C2H5 रेज पावर 1, और फिर इसका वाटर जो है H2O, इसका आना चाहिए 1। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकली देखा गया है, जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इसका जो है इसका ऑर्डर खाली 1 आता है, इसका ऑर्डर आता है 1। क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो रिएक्शंस होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जो एक टिपिकल एग्जांपल है इसकी, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज। तो इसमें क्या है कि जो वाटर है आपका बहुत एक्सेस में होता है, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। वाटर आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, बहुत एक्सेस में होता है, तो इसको हम कांस्टेंट भी ले सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट एज कांस्टेंट। दैट्स वाई इसका जो रेट होता है R, वो ऐसे लिखा जाता है K' CH3COO C2H5 रेज पावर 1, तभी इसका ऑर्डर जो होता है खाली 1 होता है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर देखा जाए ऑन अदर हैंड, इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हो बच्चों, रिएक्शन की तरफ देख के बताओ। एक इसका मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, 1 + 1 = 2। इसका ऑर्डर इसका 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है। तो इस केस में, ऐसे केस में ये एक एक्सेप्शन है, ऑर्डर आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं, ऑर्डर 1 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो दे आर नॉट इक्वल। ये एक एक्सेप्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम में आती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर जो 1 है, हालांकि इसका ऑर्डर आना चाहिए था 2 इस हिसाब से, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो, मीन्स फॉल्स। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ये है सेकंड ऑर्डर लेकिन ये बिहेव कर रही है एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके हम एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, वो भी ऐसे ही सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इट्स ऑल्सो है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वन मोर, सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये एक्सेप्शंस हैं कुछ इसकी elementary, but these reactions are elementary reactions because they are taking place in a single step. ये आपको याद रखना है, they are elementary reactions taking place in just a single step. The second is inversion of cane sugar.
C12H22O11 plus H2O, it gives you C6H12O6 plus C6H12O6, it gives you glucose plus fructose. Now this is your sugar, inversion of कैन शुगर। तो ये आपका लीवो होता है और ये होता है लीवो और ये होता है डेक्स्ट्रो। जब हम लाइट पास करते हैं तो एक लीवो रोटरेटरी होता है, दूसरा डेक्स्ट्रो रोटरेटरी होता है। तो जब आइसोमेरिज्म वगैरह की बात होती है तो वहाँ पे इसका जो है काम होता है। तो अब अगर हम इसकी रेट की बात करेंगे, रेट एक्सप्रेशन इसका है रेट इज इक्वल टू के, ये आना चाहिए C12H22O11 रेज़ पावर 1 और ये आना चाहिए H2O रेज़ पावर 1। अगेन द सेम थिंग, वाटर इज इन एक्सेस, ये एक्सेस में होता है एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल, सो इट कैन बी ट्रीट एज अ कांस्टेंट। तो हम रेट को लिख सकते हैं, रेट कैन बी रिटन एज K डैश C12H22O11 raised power 1. So we can say the order of this reaction is 1. Now molecularity क्या है इसकी ज़रा चेक करके देखो। Molecularity again it's 1 plus 1, it's 2. So again here order is not equal to molecularity. तो इस केस में अगेन आपका ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन जो है इट इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, बट इट इज़ नॉट इन दिस केस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दे आर नॉट इक्वल, because we have said earlier that in case of the elementary reactions or single step reactions order and molecularity are equal, जितना भी जो ऑर्डर होगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा उस रिएक्शन का। So again, it is an example of pseudo first order reaction. तो बच्चों इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ बन सकता है? तो आपके एग्जाम में आ सकता है जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, जो हमने पहले बताया था, एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज first order reaction, second order reaction, pseudo first order reaction, none of these. तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इट इज़ ए pseudo first order reaction। वैसे तो अगर देखा जाए वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि उसमें वाटर जो है वो एक्सेस में होता है और उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट, तो वहाँ पे वो बनती है pseudo first order reaction। सिमिलरली इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर इज इट्स ऑल्सो ए pseudo first order reaction। फॉल्स, pseudo मीन्स फॉल्स, वैसे तो ये होनी चाहिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन इट बिहेव्स लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखो। और दूसरा ये है कि एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, बट दे हैव द एक्सेप्शन दैट ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे ऑर्डर, अगर इसका ऑर्डर 1 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे बराबर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है इनमें। तो ये बात हो गई अब तक एलिमेंट्री रिएक्शंस की, सिंगल स्टेप रिएक्शंस की, कि उनका जो होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस भी हमने बता दिया आपको। 2 एग्जांपल्स थी उसकी, प्राइम एग्जांपल्स, ये जो आपकी एग्जांपल्स हैं उनका ऑर्डर जो ये होता है वो बराबर नहीं होता है। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज कोई रिएक्शन है 2A + B gives C। Let's suppose it is an elementary reaction। तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं, रेट आएगा इसका K A⁻², B⁻1, ये इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ये B आपका एक्सेस में होता है, इफ दिस B इज इन एक्सेस क्वांटिटी, तो इसका रेट जो होगा वो इसका आता है रेट इज इक्वल टू K डैश A⁻², रेट इज इक्वल टू K A⁻²। अगर ये बिकॉज दिस इज इन एक्सेस तो इट कैन बी ट्रीट एज अ कांस्टेंट, इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो रेट हम ये लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज ए pseudo सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी pseudo सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनती है। और यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2,
एंड मॉलिक्यूलैरिटी अगेन, मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। तो यहाँ भी आपका जो है ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी आपका बराबर नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी 3 है। तो अगर आपकी कोई भी रिएक्शन इन जनरल होगी 2A + B = C, एलिमेंट्री रिएक्शन है लेट्स सपोज, तो इसका रेट एक्सप्रेशन वैसे तो ये आना चाहिए कि A⁻², B⁻1, लेकिन हम ये इसमें कह रहे हैं कि एक्सेस में जो B कंपोनेंट है, B रिएक्टेंट B है, इट्स एन एक्सेस क्वांटिटी दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो आप रेट एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स जस्ट सीडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी इस केस में भी बराबर नहीं होता है। तो in general, now we can conclude, in general, order is equal to molecularity in all elementary reactions except pseudo order reactions. तो हम ये अब conclusion draw कर सकते हैं. Now we can finally conclude molecularity is equal to order in all elementary reactions. सारी elementary reactions में except pseudo order reactions. अगर कोई pseudo order reactions होंगी उनमें वो नहीं होगा, अगर वो even if they are elementary reactions, but उनमें वो बराबर नहीं होंगे. तो molecularity is called order in all elementary reactions, that is single step reactions, except the pseudo order reactions. pseudo order reactions में नहीं होगा. pseudo order reactions में क्या होगा, आपका जो molecularity होगा it will be equal to order plus 1. तो अभी हमने वो देखा कि pseudo order reactions में molecularity जो होती है वो निकलता था order plus 1. So that's the final conclusion from this. So अब हम इस पे बाद आते हैं elementary single step reactions. Now we see elementary single step reactions. वो let's suppose हमारे पास कोई reaction हो रही है x plus y, it is giving you z. It is an elementary reaction, let's suppose. तो जब हम इसका रेट लिखते हैं, when we try to write its rate expression, वो आता है कि x⁻1 y⁻1. तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका 2 है और इसका मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो भी 2 है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका, और सीडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है तो इसका ऑर्डर जो है 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी. नाउ इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो वी कैन से इन elementary reactions order is equal to molecularity except the pseudo order reactions like pseudo first order or pseudo second order reactions. बस वो एक exceptions है, उनमें वो order और molecularity बराबर नहीं होता है. Now we have second, that is complex multi-step reactions. Multi-step. Now these are the reactions which are complex reactions. They take place in so many steps. तो हमारे पास उसमें लेट्स सपोज है NO2 plus CO, it gives you NO plus CO2. Now this reaction is a complex reaction. इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो लेकिन हम इसका एक सिंगल स्टेप लिखते हैं, जनरल स्टेप, लेकिन होती है रिएक्शन बहुत सारी स्टेप्स में होती है, तो ये कोई एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है. और जब हम इसका रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K NO2 raised power 2. तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, दिस हैज बीन सीन एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ये हम बार बार आपको कहते आ रहे हैं रेट लॉ. जब हमने रेट लॉ भी जो है लेक्चर किया था, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन का, तो वहाँ भी हमने कहा था कि रेट जो है इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. जो ऑर्डर है, सॉरी, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. तो ये जो ऑर्डर है ये आपको खाली एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि ये किस पावर पे डिपेंड करता है उसकी. तो यू हैव टू डिटरमाइन इट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. तो इसकी रेट जो है ये आपकी है. अब इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या है. ऑर्डर इज 2.
और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू, अब मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी, ऑर्डर तो इसका 2 है, ये इसका रेट एक्सप्रेशन यहाँ से इसको आप पता चला कि ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? अगर आप कहते हो कि इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इट इज क्रॉस, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, इट्स रॉन्ग। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं है, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है आपकी, ये एक स्टेप में नहीं हो रही है। ये आपको जो रिएक्शन दिख रही है ये ऐसी रिएक्शन नहीं हो रही, इसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। तो NO2 पहले जो है ब्रेक होगा, फिर कुछ बनेगा, फिर वो CO के साथ मिलेगा, फिर ये बनेगा, तो बहुत सारे स्टेप्स है इसके, बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है रिएक्शन। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है जो हमने पहले डिस्कस किया इससे पहले, तो इट्स ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन एज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, उसी के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी टर्म डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू 2, या हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी इन जनरल वी कैन से इट वुड बी बेटर आंसर विल बी मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड for complex reactions. Molecularity is not defined for the complex reactions. जो complex reactions होती है उनके लिए molecularity define नहीं होती है। अब हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Let's take another example of this. Let's suppose we have CH3 CHO. It gives you CH4 plus CO, ये बनता है आपका। Now this is also a complex reaction, और जब हम इसका रेट ला एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका रेट आता है K CH3 CHO raised power 3/2. Now this has been determined experimentally, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड क्वांटिटी एंड ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इवन इट कैन बी फ्रैक्शनल। यहाँ पे जो है आपका 3/2 दैट्स अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी। अब इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर आप देखोगे, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है, चूंकि कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, कोई ये कहेगा कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 है, but it is wrong. Molecularity is not equal to 1. Again the same thing, molecularity not defined. इसके लिए molecularity define नहीं है, क्योंकि it is a complex reaction, it's not an elementary reaction that you will say that its molecularity is this or that. वो खाली elementary reaction, single step reaction जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, the molecularity is again not defined here. So molecularity is only and only defined for an elementary reaction or a single step reaction. For a complex reaction or a multi-step reaction, the molecularity is not defined. अब इसके बाद बात आती है जो complex reactions होती है, that means we can finally say the complex multi-step reactions molecularity is not defined. कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड, उनमें मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स या जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करते। और मॉलिक्यूलरिटी जो हमने पहले भी बताया, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 3। आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन की, वो हमेशा से 3 से या तो 3 के बराबर होनी चाहिए, या तो 3 से हमेशा लेस होनी चाहिए। दिस इज इसका रीज़न ये है, दिस इज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द simultaneous the probability of the simultaneous and effective collision of 3 molecules is very less
observed. Hence, intermolecular reactions are very rarely observed. मॉलिक्यूलरिटी जो होनी चाहिए m जो है वो हमेशा से 3 से लेस होना चाहिए, या तो 3 के बराबर हो सकता है कभी कभी. इन सम रेयर केसेस इट कैन बी 3. m के मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 3, but it should always be less than or equal to 3. 3 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए. This is because the probability of the simultaneous and effective collision of 3 molecules is very less observed. Probability जो होती है simultaneous या effective collision की 3 molecules की आपस में, वो बहुत ही कम observe किया जाता है. Hence the intermolecular reactions are very rarely observed. इसीलिए जो intermolecular reactions होती है जिनमें 3 molecules आपस में जो हिस्सा लेते हैं, उनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, वो बहुत कम ऑब्जर्व किया जाता है. तो दैट इज वाई m शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 3. तो नाउ वी आर कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी नॉट टू लॉन्ग लेक्चर. was a more theoretical lecture today, not involving any numerical problem or something like that to keep you interested during the whole lecture. So अब हम मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कंपैरिजन करते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलरिटी. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. Now this is a theoretically determined. ये theoretically determined होता है. ये पहला चीज है. This is experimentally determined. Order is an experimentally determined. This is theoretically determined. दूसरा चीज ये है, it is defined, order of reaction, it is defined for both elementary and complex reactions. Complex reactions, ये elementary reactions के लिए भी डिफाइन होता है ऑर्डर, चाहे रिएक्शन एलिमेंट्री हो, जो अभी आपने देखा, जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ऑर्डर, पहले हमने देखा एलिमेंट्री रिएक्शंस, फिर हमने देखा नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. दोनों में हमने ऑर्डर दिखाया कि ऑर्डर क्या होता है. दोनों का एक ऑर्डर जो होता है, उनकी एक अपनी जो उसका एक क्वांटिटी होती है, वो हर एक का ऑर्डर होता है. लेकिन जो आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस. एलिमेंट्री, दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शंस. इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. और तीसरी चीज क्या है इसमें, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन ए फ्रैक्शन. जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पूरी डिस्कस की इस एक लेक्चर में. इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है. अभी हमने देखा एक ऑर्डर जो रिएक्शन थी उसका ऑर्डर था 3/2. नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर. मॉलिक्यूलरिटी जो रिएक्शन का होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर. वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ऑलवेज. फोर्थ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of a reaction can be greater than 3.
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3, जो रिएक्शन का ऑर्डर हो सकता है वो 3 से बड़ा हो सकता है, कभी कभी 4th ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं, 5th ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन molecularity can never be greater than, लेकिन जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कभी 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, वो या तो 3 हो सकती है या तो 3 से लेस होती है। ज़्यादा चांसेस ये है कि 3 से लेस होती है, क्योंकि अगर आपकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा होती है तो ऐसी रिएक्शंस की वहाँ पे साइमल्टेनियस और इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, वेरी लेस होते हैं। अगर होगा भी कोई कोलिजन तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन उससे नहीं हो सकती है। तो इसीलिए रिएक्शन जो है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा या तो 3 हो सकती है या तो 3 से लेस हो सकती है, बल्कि 3 मॉलिक्यूल्स के भी आपस में जो है कोलिजन्स के चांसेस भी कम होते हैं, रेयर होते हैं वो। इसलिए वैसे रिएक्शंस भी जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है वो बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होती है, बहुत कम होती है वो। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की जो आपस में जो उनका डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल सकता है, वहाँ पे 4 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आप ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कि ऑर्डर जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन होता है, ऐसे बता नहीं सकता है कोई कि ऑर्डर क्या होगा उसका रिएक्शन का। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं, अगर आपने रिएक्शन को देखा, रिएक्शन से देख क्या बता सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बट दैट शुड बी ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। दूसरा आपका जो ऑर्डर होता है वो खाली हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर हम बहुत एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, और ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए खाली सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इवन इट कैन बी एन फ्रैक्शन, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा खाली एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर, ऑर्डर कभी कभी 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। तो उसका रीज़न हमने बताया क्यों 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये लेक्चर आज का यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है थोड़ा थ्योरेटिकल था, इसमें कोई इंटरेस्ट जो आपकी कोई न्यूमेरिकल नहीं थी वगैरह, तो मुझे पता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, तो उनका एक ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लगा रहता है। लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मॉलिक्यूलरिटी एज फार एज द केमिकल काइनेटिक्स कंसर्न। तो मॉलिक्यूलरिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वैसे आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, लेकिन इट्स ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए और खूब मन से पढ़िए और न्यूमेरिकल्स करते रहिए। जब तक हम नया वीडियो लेके आते हैं तब तक इजाज़त दीजिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।